एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 50 PYQ सीरीज़ का लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 5। पहले 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, इट हैज़ 930 प्लस लर्नर्स एंड द नेम इज़ UGC नेट JRF सक्सेस मास्टर। अगर आप सिंपली इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यू विल फाइंड दैट 930 प्लस लर्नर्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट के क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं और उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओके देयर एंड नोट्स रिलेटेड टू इट, एंड PYQs आर ऑल्सो डिस्कस्ड देयर, so you can join that channel. This is about me. Now let us start with the first question. Due to which of the following disabilities learners have difficulty in understanding concept of quantity and fractions? These are some learning disabilities which have been given below: dyslexia, dyspraxia, dysgraphia या dyscalculia. See, the hints are given in the question: quantity and fractions. You know that it is related to the maths. Yes? So your answer will be option number 4, that is dyscalculia. Fourth option will be the correct answer. So these are some learning disabilities which have been given here. Dyslexia is related with the reading difficulty. Dyscalculia is related with the maths problem. Like you have problem understanding time and the usage of money. Dysgraphia is related with writing. You just have to remember these keywords. Dyslexia is with reading, writing, spelling and speaking. Okay, most particularly if we talk about it is related to the reading. Yes, writing and spelling. You must have seen that in that movie Tare Zameen Par, the child had the same problem, dyslexia. He had problem with reading. Yes, so dyscalculia is related with maths, dysgraphia is related with writing, and dyspraxia is related with the motor skills, hand and eye coordination or balance. Okay, dysphasia or aphasia means difficulty with the language, means you have problem in understanding the spoken language or you can't comprehend the passage. Auditory processing disorder, as the name suggests, difficulty in hearing. Then visual processing disorder means you can't interpret the visual information. You can't interpret the charts, maps, symbols or pictures which have been used. Now another term comes ADHD. Remember its full form: attention deficit hyperactivity disorder. You might get the full form in exam. They might ask you that what is the full form of ADHD. It is attention deficit hyperactivity disorder. It is one of the most frequent chronic neurodevelopmental disorder. It affects the children, means they are not able to focus on something. Yes, there is attention deficit, means they can't focus. They are very impulsive. So this is it. You have to remember these disabilities. What you can do is you can just write the learning disability. Like अगर आप लिखते हो dyslexia, just write reading. Dyscalculia, maths. Dysgraphia, writing. Dyspraxia, motor skills. This way you have to make notes. Okay, make your notes very short so that when you revise it doesn't take much time. Now we come to the second question. Semantic barriers in communication include. You know that semantic barrier is related with the language. Yes. So out of these options you have to select the options which will be the answer: specialist's language, perceptual barriers, message overload, damaged translation or faulty translation, and underlying assumption. See, first learn the elimination technique. Specialist language means the language which has been used by the sender contains technical jargons. मतलब ऐसे वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है. yes? तो आपके लिए, रिसीवर के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको समझना, तो डेफिनेटली दिस विल कम, ए विल कम. परसेप्चुअल बैरियर मीन्स आपके माइंड में कॉग्निटिव बैरियर है. सो दिस इज समवट रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल बैरियर. इट डज नॉट come under semantic barrier.
सो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब अगर आपको पता है कि बी ऑप्शन नहीं होगा, यू कैन एलिमिनेट इन दी ऑप्शंस जहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे है, तो आप इसको सिंपली फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को कट करो। अब आपको पता है कि ए तो आएगा, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डी दोनों में ही है, तो डी को अगर आप नहीं भी देखोगे देन ऑल्सो इट इज़ ओके, क्योंकि डी तो हमें लेना ही पड़ेगा आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑप्शंस। नाउ अब हमें देखना है कि सी आएगा या फिर ई आएगा। सी मैसेज ओवरलोड मीन्स आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज मोर, so it has nothing to do with the language or the semantic barrier, so we can eliminate C also. Once we eliminate C means second option will be cut, then A, D and E is the answer, that is the third option will be the correct answer. Damaged translation means faulty translation. yes, faulty translation मतलब एरर है ट्रांसलेशन में, तो जो ओरिजिनल मैसेज होगा, जो आप मैसेज देना चाहते थे रिसीवर को, तो वो मैसेज तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यस मतलब डिस्टॉर्ट होना या हैम्पर होना, आप उस तरह से उसको नहीं पहुंचा पाओगे जैसा आप रिसीवर तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि आपके मैसेज में एरर है, आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, तो ये कहीं ना कहीं सिमेंटिक बैरियर का ही पार्ट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉड्यूल्स ऑफ ई कंटेंट in the 4 quadrant format are to be made for covering the syllabi of one MOOC of 4 credits. तो ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 35 से 40 मॉड्यूल्स होते हैं और इसके 4 MOOC के 4 क्वाड्रेंट्स भी हैं, वो 4 क्वाड्रेंट भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ई ट्यूटोरियल, सेकेंड इज ई कंटेंट, थर्ड इज डिस्कशन फोरम एंड फोर्थ इज सेल्फ असेसमेंट. In the comment section, you will write the full form of MOOC. Okay, what is the full form of MOOC? And 4 quadrants you have to remember: tutorial, content, discussion forum and assessment, TCDA. And आप इसको ऐसे भी याद रखना, मैच में भी आ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, मैच द कॉलम में भी आ सकता है, और आपको इनमें ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेंट ऑफ MOOC. दिस वे ऑल्सो यू कैन गेट द क्वेश्चन. तो ई ट्यूटोरियल में क्या है, किससे रिलेटेड है, वीडियो से रिलेटेड, यू विल गेट द वीडियोस. ई कंटेंट मीन्स टेक्स्ट मटेरियल, PDF फॉर्मेट में आपको सब कुछ मिलेगा, प्रेजेंटेशंस एंड ई बुक्स, इलस्ट्रेशंस, केस स्टडीज. ओके, यू विल गेट रीडिंग मटेरियल्स. डिस्कशन फोरम, यू कैन डिस्कस वट एवर डाउट्स यू हैव. सेल्फ असेसमेंट मीन्स वंस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, you can take quizzes or tests so as to evaluate your learning. So what are the quadrants of MOOC? TCDA. Okay, tutorial, कंटेंट, डिस्कशन एंड असेसमेंट. और असेसमेंट तो वैसे भी एंड में ही होगी जब आपने सारी लर्निंग कर ली. सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको कंटेंट देंगे, देन उसके बाद आप डिस्कशन करोगे डाउट रिलेटेड, एंड द लास्ट वन इज असेसमेंट. फोर्थ क्वेश्चन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स provided by the Government of India under National E-Governance Plan are. Now you have to select from these options कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे, and in the third option. For storage of data and hosting applications, it is. For network connectivity, it is dash, and for capacity building, it is dash. तो ये कुछ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स कहाँ पे आएगा. इसके फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आया है हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको इन सब के फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाएं. सो टेल मी फर्स्ट वन, यहाँ पे डेटा के लिए क्या होगा, SDC. ओके, देन SWAN. देखो नेटवर्क से आप, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो आप कहीं ना कहीं हिंट आपको प्रोवाइड करता है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन. नेटवर्क है तो N कहाँ पे है, SWAN में है और NISG में है, तो इन दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हो. और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या होगा, NISG. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, नोट इट डाउन समवेयर इन योर नोटबुक, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन. दिस विल बी योर आंसर. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल.
देखो SDC का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट डेटा सेंटर। स्टेट डेटा सेंटर क्या करता है, स्टेट लेवल पे इसे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि सारी सर्विसेज को कंसोलिडेट कर सके। एप्लीकेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, मीन्स G2C, G2G एंड G2B सर्विसेज प्रोवाइड कर सके स्टेट लेवल पे, तो इसे कहा गया है SDC। और इन्होंने यहाँ पे क्या लाइन दी थी, फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा एंड होस्टिंग एप्लीकेशंस। ओके, देन फंक्शंस ऑफ SDC इंक्लूड सर्विंग एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ द स्टेट, मीन्स स्टोरेज हाउस जैसे होता है ना, ऑफ द स्टेट, इंश्योरिंग सिक्योर डेटा स्टोरेज, enabling online delivery of services, hosting the citizen information service portal, facilitating disaster recovery, remote management, service integration, among others। तो SDC का फुल फॉर्म याद रखना, और आप ये याद रखना कि ये तीनों तरह के सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, G2G, G2C एंड G2B। नेक्स्ट इज SWAN, इट स्टैंड्स फॉर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG, इसका काम क्या है, ई गवर्नेंस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करना ताकि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाएँ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करती है थ्रू द डिफरेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल, ओके, टू एनहांस द सिटीजन सर्विसेज। और ये कब आया था, 2002 में आया था NISG, 2002। So I hope now if you come back to the question, it is clear। डेटा एंड होस्टिंग एप्लीकेशंस, डेटा स्टोरेज के लिए और होस्टिंग एप्लीकेशंस के लिए SDC था, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था, और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए NISG। फिफ्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम कम्युनिकेशन यूनिट। कम्युनिकेशन हैज द पावर टू डिफाइन, persuade and inform issues and events to the people. You have to tell which of the following statement is true or which of the following statement is false. Okay, so this is definitely true. Second statement is communication cannot serve as a tool of demarcation among the people. Demarcation means to divide. Whenever the word cannot is given, read it twice. इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन लोगों को डिवाइड करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, तो ये चीज़ गलत है। कम्युनिकेशन को आप पॉजिटिव चीज़ें बताने के लिए भी यूज़ करते हो और नेगेटिव भी, क्योंकि आपने जस्ट अपना मैसेज कन्वे करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, in communication the three major areas of analysis are particularism, semiotics, syntax, pragmatics and virtual reality. Tell me what will be the answer. आप खुद सोचो पहले क्या होना चाहिए। देखो पर्टिकुलरिज्म इज नॉट रिलेटेड, पर्टिकुलर मतलब कि किसी एक चीज के बारे में बात करना, तो ये एज सच बनाया हुआ ऑप्शन है, ए तो नहीं होगा। ए नहीं होगा तो हम एलिमिनेट कर देते हैं वन ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन को। अब एनालिसिस के बारे में पूछ रहा है कि मेजर एरियाज क्या हैं, अगर हमने किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप किन चीज़ों को एनालाइज करोगे। यस, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं भी पता तब भी आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर नॉलेज। तो ई ऑप्शन अगर यहाँ से गया तो ये भी ऑप्शन चला गया, थर्ड ऑप्शन, और अल्टीमेटली वी हैव रीच्ड द आंसर, सेकेंड ऑप्शन। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। सिमोटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। ओके, साइंस एंड सिम्बल्स की स्टडी। सिंटैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर, कि सेंटेंस कैसे बनाना है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। यस,
तो ये किससे रिलेट करता है? रूल्स से, ग्रामर के रूल्स से। और प्रैग्मेटिक्स का मतलब है कि आपने लैंग्वेज को यूज़ कैसे करना है, स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ओके, कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप या किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करोगे। सो दीज थ्री आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, दैट इज सेमोइटिक, सिंटैटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। A and E was not related to it. Question number 7. Biochemical oxygen demand. Because of biochemical oxygen demand, dissolved oxygen of a water body increases, decreases, remains unchanged, initially decreases and then decreases. इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले समझते हैं कि BOD है क्या और COD क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, BOD COD। BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल भी कहते हैं कई जगह। ओके, इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। मतलब अगर एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। ये चीज़ कौन मेजर करता है? BOD। ओके, एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम मेजर करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो ये वाटर क्वालिटी का इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चलता है कि वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन्होंने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है। तो BOD क्वांटिफाइज द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक एरोबिक, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं, मतलब इन्हें ऑक्सीजन चाहिए। और एक क्या होता है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, इन्हें ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। मीन्स एन लग गया ना अगर आगे, तो इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है इन्हें ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए। अब हाई BOD का मतलब क्या है? इंडिकेट्स अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, येस दे नीड अ हाई BOD, तो इसका मतलब क्या है कि पोल्यूशन भी तो ज़्यादा होगा वाटर में। येस, इसीलिए उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, विच कैन लीड टू द रिड्यूस्ड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर। और इसका मतलब कि पानी में ऑक्सीजन कम है, इसीलिए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो डिकम्पोज कर सके ऑर्गेनिक मैटर को। यस, ओनली ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर नहीं है, रिमेंबर दिस। तो अगर क्वेश्चन पढ़े, बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर वो ऑक्सीजन BOD अगर हाई है तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर बॉडी में, वो क्या है, वो कम है। यस, तभी तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। BOD की डिमांड ज़्यादा क्यों होगी जब ऑक्सीजन कम है? तो आपका आंसर क्या होगा? नंबर 2। नाउ लेट अस स्टडी COD ऑल्सो। COD क्या मेजर करता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज या ब्रेक डाउन करने के लिए। BOD में क्या था, सिर्फ हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, यस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बट COD में हम ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों को डिकम्पोज करने की बात करते हैं। इट इज़ अ की पैरामीटर फॉर असेसिंग द वाटर क्वालिटी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। लेट अस स्टडी द डिफरेंसेस ऑल्सो। BOD is typically measured by incubating a sealed water sample. आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रखा, ठीक है, और टेम्परेचर पे फॉर अ सेट पीरियड। मीन्स आपने टिपिकली यहाँ पे 5 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को। BOD वाला जो प्रोसेस है इसे ज़्यादा टाइम लगता है। एंड मेजरिंग द डिफरेंस इन द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बिफोर एंड आफ्टर इंक्यूबेशन। मतलब कि आपने पानी लिया और उसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 5 दिन के लिए रखा, तो आप अब ऑब्जर्व करते हो कि उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। उसे हम BOD की हेल्प से पता करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया। और क्योंकि हमने 5 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट को टाइम लगता है,
तो इसकी वैल्यू 5 दिन तक ही हमें मिलेगी। बट BOD की जो वैल्यू होती है वो COD से कम होती है। ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ये चीज़ आ सकती है। रिमेंबर, BOD वैल्यू इज लोअर दैन COD। क्योंकि अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो COD जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, COD वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि COD टोटल ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों को कंसिडर करता है। यस, टोटल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे कहेंगे टोटल अमाउंट को कंसिडर करता है, दैट इज ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। दोनों को ऑक्सीडाइज करने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे दोनों को कंसिडर करता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है और BOD की वैल्यू कम होती है। ओके, मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड आप कह सकते हो कि टोटल कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिकम्पोज करने के लिए, इसलिए COD की वैल्यू ज़्यादा होती है और BOD की वैल्यू कम होती है। BOD को ज़्यादा टाइम लगता है 5 डेज़, बट COD जो है वो सिर्फ 2 घंटे में ही हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करवाते हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी हम वाटर सैंपल लेते हैं उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करवाया जाता है और फिर उसका इफेक्ट देखा जाता है। COD की वैल्यू ग्रेटर है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। आप ये याद रखना कि COD की वैल्यू किस मेथड से डिटरमाइन होती है। द नेम ऑफ द मेथड इज डाइक्रोमेट मेथड। जस्ट रिमेंबर द नेम, डाइक्रोमेट मेथड। Now BOD is used to oxidize the natural organic matter, yes, and COD is capable of degrading the industrial sewage also, क्योंकि inorganic और organic ये तो दोनों कंसिडर करता है, yes, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, बट यहाँ पे सिर्फ हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 8, a marketing instructor wants to engage students by conducting the live polls. Now this is the keyword. अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा या आपने ये टूल्स को नहीं पढ़ा, फिर भी आप कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यू गॉट द वर्ड लाइव पोल। ऑप्शंस में देखो C ऑप्शन में पोल है, तो C तो पक्का आएगा, इसको एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट ऑप्शन को, सेकंड को भी एलिमिनेट करो। अब हमारे पास रह गया ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। C दोनों में है, ठीक है। अब B, D, E में से हमें देखना है। A तो हमें पता चल गया कि A नहीं आएगा। अब यहाँ पे कैम वर्ड लिखा है, तो कैम का तो कहीं ना कहीं वीडियो से या रिकॉर्डिंग से कुछ रिलेटेड होगा, पोल से रिलेटेड तो नहीं होगा, तो D को एलिमिनेट करो। यस, D एलिमिनेट हुआ तो मतलब फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ और आपका ऑप्शन क्या हो गया, B एंड C, मीन्स स्लाइडो एंड स्ट्रॉ पोल। दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ टूल्स, और यहाँ पे पूछा क्या था कि लाइव पोल्स ड्यूरिंग एन ऑनलाइन लेक्चर टू गैदर इंस्टेंट फीडबैक ऑन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड द इंस्ट्रक्टर यूज फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग पोल्स। ओके, रिलेटेड विद लाइव पोल। सो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व। दिस इज द स्लाइड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। स्लाइडो एंड स्ट्रॉ पोल्स आर यूज टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द लाइव पोल्स। फ्लिप ग्रिड किस लिए यूज़ होता है, वीडियो बेस्ड इंटरेक्शंस के लिए। कैमटासिया किसके लिए यूज़ होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए, बट ये पोलिंग के लिए नहीं यूज़ होता। अडोब इलस्ट्रेटर ग्राफिक्स एडिटर है और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, और अडोब इलस्ट्रेटर भी पोल्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता। ओके, 9th क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथ्स। अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा and 25 paisa make a sum of rupees 71. The number of 20 paise coins is. See, such questions the best way I tell you is to solve from the options. आप कोई भी रैंडम नंबर उठाओ, let us take 200. ओके, तो हम मान लेते हैं कि जो 20 पैसे के जो कॉइन्स है, ये पैसा है, ठीक है, पैसे इंटू यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉइन्स, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इन एग्जाम यू डोंट हैव टू राइट। 20 पैसे हम मान लेते हैं कि 20 पैसे के हमारे पास 200 कॉइन्स हैं। ओके, अब अगर टोटल कॉइन्स कितने दिए हुए हैं, 324,
टोटल कॉइन्स कितने दिए हैं 324 और 20 पैसे के कॉइन्स कितने हैं 200, तो रिमेनिंग कॉइन्स कितने हो गए 124, यस। और रिमेनिंग कॉइन्स कौन से हैं 25 पैसे के, तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए 124। नाउ दिस विल कम टू 4000, यस, एंड दिस विल बी 3100, और आप इसको सम अप करोगे तो 7100। बट वी ऑल नो दैट 1 रुपी में कितने कॉइन्स होते हैं 100, यस, 100 पैसे, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आया 71 रुपीज़। तो ये 71 देखो इससे मैच करना चाहिए। अगर आपका आंसर 71 आया तो इसका मतलब है ये जो 200 आपने अज्यूम किया था ये सही है। अगर आपका यहाँ पे 71 नहीं आता, मान लो आपका 81 आया या कुछ और आया 100 आया, तो इट मीन्स यू हैव टू चूज सम अनदर ऑप्शन। ओके, दिस इज द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे। अगर आप इसको चाहो आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हो, लाइक 20 इंटू एक्स आप मानोगे, फिर उसको डिवाइडेड बाय 100, फिर आप इसको यहाँ पे 25 पैसे कॉइन्स कितने रह गए 324 माइनस एक्स, ऐसे करके डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 71। ओके, दिस वे ऑल्सो यू कैन डू कि अगर 20 पैसे कॉइन्स हैं, 20 पैसे कॉइन्स को x मान लेते हैं, तो 25 पैसे कॉइन्स कितने होंगे 324 माइनस एक्स, यस। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी 20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, और 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे 324 माइनस एक्स। जैसे हमने यहाँ पे तो 200 अज्यूम किया था ना, बट यहाँ पे तो हम x लेके चल रहे हैं, तो 324 माइनस एक्स। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर इफ यू अडॉप्ट दिस अप्रोच, द फर्स्ट वन। सो 200 विल बी योर आंसर। Go with the options, you will easily get the answer in less time. 10th question, the sum of three numbers is 124. If the ratio between the first and the second is 2:3, and the ratio between the second and the third, second कहाँ है तो second तो B था, second and the third is 7:9, then the third number is, थर्ड नंबर क्या है C, मतलब हमें C की वैल्यू पूछ रहा है, यस। तो यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म क्या है B, क्योंकि B यहाँ पे 2 बार आया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यस। और ये जो B था इसको आप A से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ A से, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, अगर 7 इंटू 2 करते हैं तो 14 आएगा, 3 इंटू 7 करेंगे हम तो आपका आएगा 21, और 3 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 27, यस। तो इसको हम ऐसे प्लस कर सकते हैं, और आपका टोटल तो दिया हुआ है, सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 124। अब अगर इन सबको प्लस करेंगे यू विल गेट 62x, यस। 62x is equals to 124. So x is equals to 124 divided by 62, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बट हमसे पूछा क्या है थर्ड नंबर, दैट इज C, और थर्ड नंबर यहाँ पे क्या था 27, दिस वन, क्योंकि अब हमें इस वैल्यू को देखना है ना ABC, तो C इज व्हाट 27x, तो 27 इंटू 2, हमारा 54 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर B। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ नहीं करना, आपने A, B, C जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। यू विल जस्ट सी विच इज़ द कॉमन टर्म, कॉमन टर्म इज़ B। आप B की यहाँ पे जो वैल्यू है इसको आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, B और C से, और ये जो B की वैल्यू है इसको आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज़ A। बट यहाँ पे आप B को दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ओके, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी 3 इंटू 7 कर दिया है ना, और हमें सिर्फ 3 टर्म्स ही चाहिए A, B एंड C। बस आप उसके बाद उसको टोटल करो, सम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर थर्ड टर्म पूछा है तो C की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर सेकंड टर्म पूछा होता तो B की वैल्यू फाइंड करते, फर्स्ट टर्म होता तो हम A की वैल्यू फाइंड करते। बट कीप वन थिंग इन माइंड, जो वैल्यू लेनी है वो इसको देख के फिर हम लेंगे 14, 21 और 27 में से, ओके। नाउ
आई शैल गिव वन होमवर्क टू यू, ओके। इसी जो 10th क्वेश्चन हमने किया उसी के बेस पे आप एक होमवर्क करना। A/B की रेशियो आपको दी हुई है 2:3, ओके, 2:3, और B/C की वैल्यू आपको दी है 4:5। सम आपको इन तीनों नंबर का जो सम है वो आपको दिया है 140। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ द सेकेंड नंबर, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपका आंसर क्या आया, ओके। एंड आई विल पिन द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर होगा उसको पिन किया जाएगा। सो दिस इज इट। विद दिस वी कंप्लीट द 50 PYQ सीरीज। अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं आप उसको देख सकते हो। यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट फॉर एग्जाम। If you haven't joined our Telegram channel, you can join it. More than 930 plus learners are there. UGC NET JRF Success Master, आप इसको टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करो, ज्वाइन करो, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ओके। थैंक यू। अगर आपको किसी लेक्चर पे अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट इट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।